बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं देशमुख जुनैद के साथ। शो में मेरा साथ देने के लिए मौजूद है दुनिया ज़राफ़त का बहुत ही मोतबर नाम नसीम फ़िक्की, शजर अब्बास द ग्रेट, हमारी को होस्ट सुहाना सयाल। और नाज़रीन, हमारे आज के मेहमान ख़ास हैं तो हड्डियों के नामवर सर्जन, लेकिन सियासी और माशरती इशूज़ का भी ऐसा पोस्टमार्टम करते हैं कि बसा औकात बात जेल की सुलाखों तक जा पहुंचती है, लेकिन माफ़ी की मीम तक ज़बान पर नहीं लाते। अपनी हमाजोत शख्सियत के बायस अपने चाहने वालों के दिलों पर राज करते हैं। सारी उम्र अपने काम से अदल किया, डॉक्टर उमर आदिल। डॉक्टर साहब की दिलों को मोह लेने वाली बातों की तरफ हम बाद में आते हैं। पहले आपको और डॉक्टर साहब को लिए चलते हैं अपने स्किट बोर्ड की जानिब और देखते हैं कि लालच इंसान को किस कदर पस्तियों में गिरा देता है। मैनू तेरी स्कीम दी ना समझ नहीं आई ਚਾਚਾ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਆ हाँ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। आहो ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਆਣਾ, ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਅੱਗੇ ਡਰਾਮਾ ਇਹ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਚਾਚਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੂੰ ਝੂਠ ਮੂਠ ਜਾ ਮਰ ਜਾ, ਸਾਰੇ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖਣਗੇ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਬਰ 'ਚ ਦੱਬਾਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਕਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸੁਰੰਗ ਕੱਢੀ, अच्छा ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਵਿੱਚ ਦੱਬ ਕੇ ਉੱਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਤੂੰ ਉਧਰੋਂ ਦੀ ਨਿਕਲ ਜੇ ਨਿਉਲੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਚਲਾ ਜੇ ਐਬਟਾਬਾਦ 2 ਸਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਆਈ, अच्छा ਠੀਕ ਹੈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਖਾਦੇ ਪੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਫਰਾਡ ਕਰਾ, ਗੁਨਾਹ ਹੋਏਗਾ। ਪੈਸੇ ਖਾਣ ਦਾ ਸਵਾਬ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਗੁਨਾਹ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਅਗਰ ਝੂਠੀ ਮੁੱਠੀ ਦਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਡਰਾਮਾ ਕਰ ਲੇਗਾ ਤੇ? ਉਹ ਪੁੱਤ ਇਦਾਂ ਨਾ ਕਰ, ਜੇ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ? ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਕੌਣ? ਤੇਰੀ ਦੌਲਤ ਸਾਰੀ ਮੈਂ ਸੰਭਾਂਗਾ। ਐਵੇਂ ਮਰੇਗਾ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਦੱਸ ਐਵੇਂ ਮਰਨਾ ਕਿ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਮਰਨਾ ਹੈ? ਐਵੇਂ ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਮਰ ਜਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਬਲੇਡ ਨਾਲ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਤੇਰੀ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਸੜਕ ਵੱਢ ਦੇਣੀ। ਹਿੱਲੀ ਨਾ ਚਾਚਾ, ਜੇ ਹਿੱਲਿਆ ਮੈਂ ਤੇਰੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਤੋੜ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਹਿਲਦਾ। ਮਰ ਜਾ ਹੁਣ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਜੇ ਸਾਹ ਲਿਆ ਨਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਮਾਰ ਦੇਣਾ। ਅੱਧ ਫਿਰ ਲੈਣਾ। ਆਹੋ ਤੈਨੂੰ ਅੱਧਾ ਹੀ ਦਿਆਂਗਾ ਮੈਂ। बड़ा अफसोस होया भाई। ਚਾਚਾ ਅੱਗਾ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਓ ਚਾਚਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਓ ਚਾਚਾ ਕਿਉਂ ਟੁਰ ਗਿਆ? ਚਾਚਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਲਈ ਕਵਾਂ ਗੋਲਿਆ ਨਾ ਕਰ। ਆਏ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਜਨਾਜ਼ੇ ਤੇ ਆਏ। जनाजे ते नहीं आए, पैसे लेन आए। ਕਾਹਦੇ? हत्थ उधारे ले सू, ਆਏ ਹੁਣ ਤੇ ਹੱਥ ਹਿਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। हत्थ मार के लै गया सी। ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਲੈ ਵੀ ਜਾ। कहंदा सी 5 दिनां बाद मोड़ देंगा। ਏ ਚਾਚਾ 4 दिनां बाद ही मर गया ही। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ? 4 दिनां दी। ਤੂੰ 5 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਉਹ ਰਹਿਮਤਾ, ਉਹ ਤੂੰ ਕਾਹਦਾ ਰਹਿਮਤਾ, ਤੂੰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜ਼ਹਿਮਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਜ਼ਹਿਮਤ ਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕਹੀਦਾ। ਉਹ ਤੇਰਾ 5 ਲੱਖ ਮਰੇ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕੀ ਕਹੀਦਾ। ਤੂੰ ਕਾਹਦਾ 5 ਲੱਖ ਲੈਣਾ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ 5 ਲੱਖ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਚੌੜਾ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿਤਾ ਮੈਂ ਦੇ ਦੂੰ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਚੌੜਾ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੇ ਆਕੜਿਆ ਪਿਆ। देखिए मैं बैंक से आई हूँ। ਹਾਏ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬੈਂਕ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਛੱਡ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ। छड़ के नहीं मर गया, ले के मर गया। जी, हमने इनको गाड़ी दी थी। गाड़ी लेने के बाद इन्होंने बोल दिया कि गाड़ी चोरी हो गई है। अच्छा। और जब इन्होंने गाड़ी ली थी तो उस वक्त इनकी रिपोर्ट्स, मेडिकल टेस्ट में सब कुछ ठीक था। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ? ये किस चीज से मरे? ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ। इनको तो कैंसर का सी भी नहीं था। ਬਲਕਿ ਜਦੋਂ ਮਰਿਆ ਸੀ ਕਰਦਾ ਮਰਿਆ। देखिए बैंक इतना पागल नहीं होता, वो जब भी किसी को कर्ज देता है, गाड़ी देता है, घर देता है, वो पहले वेरिफिकेशन करता है उसकी हेल्थ की। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। हम कर चुके हैं, हमारे हिसाब से he was perfectly fine। नहीं, मेरा ख्याल है डॉक्टर को गलतफहमी हो गई। कैंसर तेन जमदे ही सी, बल्कि बाद च पैदा होया, पहले कैंसर होया सी। हाँ, देखिए ये हमने सारी इनकी मेडिकल रिपोर्ट्स करवाई हुई है, यहाँ पे इनको कोई बीमारी डायग्नोज नहीं हुई। जिथे टुर गया उथे कोई रिपोर्टा नहीं। ਹੁਣ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਬਣਨੀਆਂ ਹੋਈ ਨੇ। ਚਾਚਾ ਨਾ ਜਾਈ, ਚਾਚਾ ਨਾ ਜਾਈ। ਆਪ ਤੇ ਟੁੱਟ ਹੋਇਆ ਮਰੇ ਹੀ ਮਰੇ, ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਮਰੇ। ਤੇਰਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਜੀ? ਤੂੰ ਤੇ ਕਦੀ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ, ਫਰਾਡੀਆ ਮੇਰੇ ਘਰ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿਵਾਵਾਂਗਾ। ਲੋਨ ਕਾਰਡ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ 5 ਲੱਖ ਖਾ ਗਏ। पुलिस से बैंक वाले मेरे पीछे पै गए ने। आए मैं मर गई। तेरे पीछे पै गए ने, साडे इधर पै गए ने। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਪਲਾਟ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਨੇ? 24 ਲੱਖ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੀ ਦੁਆ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ?
24 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਪਲਾਟ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਦਵਾਈ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਰਜਿਸਟਰੀ ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪ ਖਿਚਾ ਕੇ ਲਵਾਉਂਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਖਿਚਾਉਂਗਾ? ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੰਮੇ ਪੈ ਕੇ ਖਿਚਾ ਲਾ, ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਕਲੀਅਰ ਆਜੂ। ਨਹੀਂ ਭਾਈਜਾਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓਗੇ। ਹਾਏ ਪਿਓ ਹੁੰਦਾ ਤੇ मैं लांदा, मैं भतीजा, मैं किस तरह लावा? देखिए मेरी बात सुने, जब इनकी डेथ हुई आपने किसी हॉस्पिटल से वेरिफिकेशन की है? हाँ जी। आर यू श्योर कि ये मर चुके हैं? उन्होंने कहा बड़ी देर दा मर गया सी, अखां च मिटी। ਜੇ ਭਤੀਜਾ ਵਾਰਿਸ ਬਣ ਸਕਦਾ ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵੀ ਦੇ ਹੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਓਏ ਤੂੰ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦੇ ਹੁਣ। ਹਾਏ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਦੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ, ਕਾਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈ, ਕਾਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋਈ। ਓਏ ਤੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਖਲੋਤਾ ਸੀ ਚਾਚੇ ਆਪਣੇ ਦੇ। ਉਦੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਸਦਮੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਚੋਂ ਗੱਲਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ। ਹਾਏ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਵੀ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਏ। ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਿਆ ਬੀਵੀ ਹੈ ਤੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਆਪਸ 'ਚ। ਅੱਗ ਲੱਗੇ ਨੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ। ਹਾਏ। ਬਾਜੀ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਬਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ 2 ਕਨਾਲ ਦਾ ਪਲਾਟ ਹੱਕ ਮੈਂ ਚ ਦਵਾਂਗਾ। ਹਾਏ 2 ਕਨਾਲ ਵੰਡਣ ਵਾਲਿਆ ਕਿੱਥੇ ਟੁਰ ਗਿਆ? 2 गज। ਬਾਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਲਾਟ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇੰਤਕਾਲ ਕਰਾਵਾਂਗਾ। ਹਾਏ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲਿੱਤਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ, ਕੱਲ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਇੰਤਕਾਲ ਕਰਾਣਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਆਪੇ ਇੰਤਕਾਲ ਕਰ ਗਿਆ। ਹਾਏ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ? मेरी बात सुने, हाँ जी। उनका प्लॉट नाम होना था, इनका इंतकाल होना था, इनके पैसे देने थे। ये दुनिया में करता क्या रहा है? ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਆਖਰਤ ਦੀ ਦੁਆ ਕਰੋ। ਏ ਵੀਰਾ, ਹਾਂਜੀ। ਆਖਰਤ ਆਪੇ ਹੀ ਸਵਾਰ ਲੇਗਾ, ਇਹਦੀ ਦੁਨੀਆ ਸਿੱਧੀ ਕਰਾ ਦੇ। ਉਹ ਚਲੋ ਮਰਨ ਲੱਗਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੋਂ ਨਾ ਹੀ ਕਢਾ ਦਿੰਦਾ ਏ। ਹਾਏ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਖਾ ਕੇ ਮਰਿਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਦਹੀਂ 'ਚ ਖਿੰਗਰ ਰਿੱਟ ਡਿੱਗੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਠਹਿਰ ਜਾ। ਓਏ ਆ ਵੇਖ ਲਾ ਮੁੰਡਿਆ, ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਚੜਿਆ। ਹਾਏ ਓਏ ਅਗਰ ਤੂੰ ਇਹਦਾ ਰੂਪ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹਨਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਾ ਦੇ। ਮੈਂ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਹੋ ਵੇਖਣਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾ ਦੇ। कौन बोला है पानी? ਉਹ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾ ਦਿਓ। ਓਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਲਾਤਾ ਚਾਚੇ ਤੇ। आपके चाचे ने मरने से पहले सारा जहान लूटने का प्लान किया था। ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੇ ਇੰਜ ਦਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਿਚਾਰਾ। ਮਰਨ ਤੋਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਜਿੱਦ ਕੋ ਪੈਸੇ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਲੱਖ 2 ਲੱਖ ਵੱਧ ਦੇ ਕੇ ਜਾਵਾਂ। ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਵੇਚਣ ਨੂੰ ਫਿਰਨ ਡਿਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਤੇ ਜਾਨ ਵਾਰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਾਚਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇ ਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਦੇ ਦੇ। ਤੇ ਪੇਪਰ ਚੁੱਕਿਆ, ਅੱਛਾ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਸੈਨ कर दिए। ਨਹੀਂ, ਹੱਥੋਂ ਕਲਮ ਡਿੱਗ ਪਈ, ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਿਆ, ਉੱਤੋਂ ਲਿਖੀ ਗਈ। ਯਾਰ ਤੂੰ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਕਰ ਦੇਣੇ ਸੀ। आपको ये कर्ज अदा करना चाहिए। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਕਫਨ ਜੋਗੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਕਫਨ ਵੀ ਉਧਾਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪਾਇਆ ਜੀ। ਓਏ ਨਾ ਕਰੀ। ਕਬਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਣਗੇ? ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹੀ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ? ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ। जी? ਹਾਏ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਆਪੇ ਸਵਾਲ ਆਪੇ ਹੀ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ? ਹਾਏ ਮੇਰਾ ਇੰਤਕਾਲ ਨਾ ਕਰਾ ਛੱਡ। ਹਾਏ ਤੇਰੇ ਕੋਲ 2 ਲੱਖ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵਿਆਹ ਮੇਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਤੇ ਤੂੰ ਦੱਬ ਦੇਗਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਕੌਣ ਦੱਬੂਗਾ? ਹਾਏ ਚਾਚਾ ਉਹ ਕੀ ਆ? ਗੱਡੀ ਕੀਆ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲਈ ਹੈ ਨਾ, ਕੀਆ ਗੱਡੀ ਸੀ। क्या देख रही है? मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि कीड़े क्या खाएंगे। ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕਰਜ਼ਈਆਂ ਨੂੰ ਕੀੜਾ ਵੀ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਕੀੜਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, हाय ਜਿੰਨੇ ਇਹਨੇ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਖਾ ਲਏ ਨੇ ਇਹਨੇ ਕੀੜੇ ਵੀ ਖਾ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਇਹ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇ। ਇਹਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਉੱਠਣਾ ਨਹੀਂ। उठ जा चाचा उठ जा। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਠਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਉੱਠ। ना उठ। ये उसकी आवाजें कानों में गूंज रही हैं। हाय, तेरे भी कन्ना गूंज रही ना। अरे मेरे वर्गी। ਚਾਚਾ ਮਰ ਗਿਆ। चाचा मर गया बकासिया। ओ बकासिया चाचा चला गया। ओ चाचा तेरा नाम लेंदा गया। ਉਹ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਮੈਂ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਾਹ ਵਾਸਤੇ ਮਾਫ ਕੀਤਾ। ਓਏ ਦੇਖੋ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲਿਓ, ਉਹ ਵਿਕਾਸ ਨੇ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਮਾਫ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਚੰਗੇ ਲੋਕ। ਇਹਨੇ ਕਹਦਾ ਕਰਦਾ ਇਤੋਂ 30 ਮੈਂ ਆਪ ਲੈਣਾ ਵਾ।
चाचा लम्हा पैर लम्हा पैर अबे ये तो जिंदा है। ओए होए अब ये नहीं मरेगा, अब तुम मरोगे। क्या मरूं? इसको रेस्ट करवाएं, करवाएं इसको रेस्ट। चाचा नस के अपनी कब्र च वड़ जा। नाज़रीन, क्या मुझे लेना एक छोटा सा वक्फा, और वक्फे के बाद बातें होंगी डॉक्टर उमर आदिल साहब। डॉक्टर साहब, आपको थोड़ा बहुत याद है, अगर आप अपने जरा जहन पे जोर डालें, कि आप इस मुल्क के नामवर ऑर्थोपेडिक सर्जन भी थे? हजूरे वाला, हर शाम मुझे ये हकीकत याद आती है, और अच्छी तरह याद आती है, क्योंकि ये तो खटिया कमा के खाना वा और ਤੁਹਾਡਾ ख्याल है मैनू शो मिलिया जीएनएन ते। नहीं डॉक्टर साहब, आपके जिंदगी के जो दीगर हवाले हैं वो आपके इस बुनियादी प्रोफेशन पे इस कदर छा गए हैं कि लोगों को अब याद ही नहीं है कि आप एक ऑर्थोपेडिक सर्जन, और बहुत ही मोतबर और मुस्तनद इस मुल्क का आपकी जिंदगी का भी हवाला है, और इस मुल्क में भी आपका नाम बहुत एहतराम से लिया जाता है जी, ऑर्थोपेडिक मैं के इसमें हवाले से। छोटी सी बात आपको अर्ज करूं। बात यह है कि मुझे जिंदगी एक ही दफा मिली है, और मैंने इसी एक जिंदगी में हर चीज जीनी है। मेरे लिए मुझे मुश्किल है कि अगर इस दफा ऑर्थोपेडिक सर्जन बन जाऊंगा, अगली दफा मैं टेलीविजन पर्सनैलिटी बन जाऊंगा, उससे अगली दफा मैं कुछ और बन जाऊंगा। हुजूर वाला, मुझे एक ही जिंदगी में हर चीज जीनी है। और एक आपको बात बताऊं, ये जो है ना मेरा हवाला ऑर्थोपेडिक सर्जन का, वो एक जुमला है जो कहा जाता है कि फिर आ किसी दिन खुशबोल आके, आ ना फिर किसी दिन हड्डी तोड़ा के। डॉक्टर साहब, ये सोशल मीडिया ते बह के बददुआवां से किए नहीं है, बददुआ 4 महीने दी जेल ने सिखाइयां ने मेरी गल सुन, बददुआ तेरे वास्ते होवेगी, साडे वास्ते तो रोजी है। गल तुसी बड़ी विचली कही है, मैं हल्की जी, कि ए गल्लां तानू जेल ने सिखाइयां ने। ते हुजूर वाला, एक आपको बात बताऊं, दुनिया में आम जिंदगी आपको कुछ भी नहीं सिखाती जब तक आजमाइश, मुश्किल, परेशानी ना आए। हुजूर वाला, आपको ये 3 चीजें ऐसा कुंदन बनाती हैं सर, जिस पे आजमाइश नहीं आई उसको आसाइश नहीं मिली, जिसको परेशानी नहीं आई उसको खुशी का क्या पता चलेगा। डॉक्टर साहब, ये फरमाएं कि जिंदगी के कभी किसी डार्केस्ट लम्हे में भी सोचा था कि डॉक्टर उमर आदिल को जेल भी देखनी पड़ेगी? हुजूर वाला, मैं यकीन कीजिए नहीं सोचता था, मगर हुआ क्या, और मैं बिल्कुल हल्फन और कसमन, और मेरे साथ मेरा भाई बैठा है इसके सामने, मैं वैसे भी झूठ नहीं बोलना चाहता, इन लोगों से मुझे एक और तरह की मोहब्बत है, जो अल्लाह करे आपसे भी हो जाए, लेकिन फिल वक्त तो नहीं है। जुनेद, हुआ ये, मैं आपको एक बात बताऊं सर जी, जो जेल की पहली रात होती है सर, 2:30 बजे के करीब बिल्कुल एक सकूत होता है, हर इंसान वहां कैद किया होता है, जंजीरों के अंदर और सलाखों के पीछे हू का आलम होता है। हुजूर वाला, जिस दिन मैं पहले दिन जेल में था और 2:30 बजे बिल्कुल आपकी आंखें खुली होती हैं, काल कोठरी, और काल कोठरी के अंदर मैं कसम खा के कहता हूं कि मुझे न जाने कहां से एक सिसकी सुनाई दी। मैंने वाकई हर तरफ देखा कि यहाँ मेरे करीब कौन है कि जिसने इस कदर दर्दनाक सिसकी ली है इस वक्त, और कई लोग लेते होंगे वहां पे, कोई नहीं था वहां पे। और सुहाना, आप यकीन कीजिए, मेरा ईमान इस पे बेस्ड है, उस एक सिसकी ने मुझे बताया कि जिंदाने शाम हो या जिंदाने लाहौर, हक परस्ती का इल्जाम लगा हो और बैत ना करने पे आप अड़े हुए हों, तो ये वो जजा है, सजा नहीं, जो अल्लाह ताला ने अपने महबूब की आल को दी है। इसके बाद मैंने कभी सोचा नहीं था कि डॉक्टर उमर आदिल जैसा गंदा, गुनाहगार, बदकार इंसान उस मकाम पे पहुंचेगा जहां पे वो हस्तियां पहुंची। अरे, जहां सुन्नतें फॉलो करते हो वहां ये याद रखना कि हक परस्ती सबसे बड़ी सुन्नत है, और हक परस्ती को मानते हुए जेल में चले जाना और अपनी बातें कायम रहना, और एक नोट ना लिख के देना कि मैंने ये माफीनामा दे दिया, मैनू माफ कर दियो। असी बड़े बड़े वेखे सर ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੱਕਰੀ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਬੱਕਰੀ ਦੀ ਵੀ ਹੱਤਕ ਇਹ ਕਹਿਣਾ, ਬੱਕਰੀ ਤੇ ਫੇਰ ਦੇਖੋ ਜੀ 4 ਲੱਤਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੀ है। सर जी, एक बात सीखी है, वो ये कि मुझे अपनी लिमिट का पता चला। 2 चीजें हैं जुनेद जो आपको ये बताती हैं कि आपकी इस्तिताअत और आपकी पहुंच कहां तक है। एक है मोहब्बत। मोहब्बत में आप ये सीखते हैं कि बंदगी और किस हद तक अना की नफी है, और कैद में आप ये सीखते हैं कि किस कदर अल्लाह पे यकीन है, और इस बात पे यकीन है कि पूरा ज़माना आपके खिलाफ है मगर वो आपके साथ है। अगर ये 2 बातें पता चल जाए। अच्छा डॉक्टर, ये बताएं कि वापस आके आपने जेल में जो सख्तियां देखी हैं, अब आपका जी करता है कि आप प्रैक्टिकली अंदर जो मौजूद कैदी हैं उनके लिए कुछ कर सकें, या जेल इस्लाहात की कभी कोई इस तरह की हकीकी
कोई बॉडी बने जो कुछ करने के काबिल हो, तो आप उसका हिस्सा बने या कुछ कर पाए उनके लिए? इतनी अहम बात आपने की है, मैं इसमें छोटी सी बात आपको बताऊं सर, जो मेरी बिसात है। एक तो पहली बात आपको ये बताऊं, किस मुंह से कहूं, और सब लोग मेरे गवाह हैं कि जो मेरे परवरदिगार ने जेल पे मुझ पे करम नवाजियाँ की। हजूर वाला किसी दिन मेरे साथ चलिएगा, मैं आपको दिखाऊं कि मुझे जेल वालों ने कहाँ रखा, उससे ज़्यादा हसीन जगह मुमकिन नहीं है। आप नारायण लखपत में थे? आप यकीन करें, नारायण लखपत क्या होगा उसके आगे। यकीन कीजिए, मुझे तो कई दफ़ा लगता था कि ये बहिश्त का एक टुकड़ा है, नारायण उसके सामने क्या चीज़ है। एक बात सच बता रहा हूँ सर, मैं अपने दोस्तों का नाम ले चुका हूँ इस सिलसिले में। जब खाने का वक्त आता था तो ऐसा लगता था कि एक बुफे सामने लगा हुआ है, और सुपरिटेंडेंट साहब और डिप्टी सुपरिटेंडेंट साहब अख बचा के गुजर जाते सन कि इन्हों ने क्या ऐश इत्थे कीती हुई है। विकी, मैं तुझे गल दसा, बुलाया नहीं होता मेरी जान बुलावांगा, फिक्र ना कर तू, और की घबराओ ना, लम्मा बुलाएंगे, महीना डेढ़ महीना तसल्ली ना रह गया। हजूर वाला बात यह है कि आप लोग अक्सर ये सोचते हैं कि शायद जेल में जाके राज़िक राज़िक नहीं रहता, रहमान नहीं रहता, ओदी हसीयत ओदी सिफात बदल जानी है, कभी भी नहीं। ऐसा होता था, एक वक्त में 8 खाने की चीजें होती थी। कोई गुजराने दी पक्की हुई, कोई पिंडी दी पक्की हुई, कोई लाहौरों ताज़ी आई हुई। मैं ये कस्मिया बात कह रहा हूँ, मेरे गवाह इसमें कम से कम 50 लोग हैं। और होता ये था हजूर वाला कि जब इतने खाने की अफरात देखता था, एक नज़र वो लौट जाती है उधर को भी नज़र, क्या कीजिए, वो लोग हसरत से देख रहे होते थे जिनको खाना नहीं कभी मिला होता था सिवाय जेल की रोटी के। हजूर वाला मेरे साथी आपको ये बताएंगे, मैं अपनी रोटी लेके होते थे सालन पाके, कभी चोरी एनू दे देना, कभी एनू दे देना। आप जरा पूरी ईमानदारी और सच्चाई के साथ बताइएगा कि उन तन्हाई के लम्हों में कभी गौर किया कि यार शायद मुझे भी ये बात इस अंदाज में नहीं कहनी चाहिए थी, मैं यही बात इस अंदाज में कर सकता था? नहीं, एक दफ़ा भी नहीं सर जी। उसकी वजह यह है, मैं सोचता था, यानी आप अपने मौक़िफ़ पे भी कायम है, आप अपने लहजे और लफ्ज़ों पर भी कायम है? सर इंतहा से तक कायम हूँ, और मुझे इस चीज़ का जो बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिला वो इस बात पे, हजूर वो तीर जो निशाने पे बैठता है, तीर जिसको लगता है बिलबिलाता उसी पे है। सही बात। खुंडा तीर होवे, डिंगा टुरदा होवे, पिछो पूछण एक पासे होवे, अगों बड़ा ही भैड़ा किस्म दा अनी होवे, वो की तीर होया। डॉक्टर साहब, इसका मकसद ये है कि दूसरे को बिल बलवाना जो है वो मकसद है कि दूसरे को तकलीफ देना मकसद है, इस कौम की इस्लाह करना मकसद नहीं है आपका? हजूर वाला, जिनकी इस्लाह हम करना चाहते हैं, उनकी तवज्जो और उनका बिल बिलाना, ये दो चीजें सबूत हैं। हमें रसीद मिलती है कि जेड़ा तीर मैं मारे है हमें मैं फुल मारे लगा वट्टे वंगर है। हजूर वाला, जब तक आप अपने तंज को, अपने सरकाज़म को, अपनी करेक्शन को इफेक्टिव नहीं बनाते, भाई जान भोले पा करने वाली गल्लां नहीं, ए मां दी पुचकार नहीं जिदे बच्चे ने ठीक होना है, ए प्यो दी जुत्ती हुंदी है जिदे लोकां दीयां किस्मतां ठीक हुंदियां ने, उन्हां दे मुस्तकबिल ठीक हुंदे हैं। आप ये बात मेरी याद रखिएगा। आपके वो उस्ताद जिन्होंने आप पे खसूसी तवज्जो दी, याद है वो आपकी हर आदत पे, आपकी लिखाई पे, आपकी सफाई पे, आपके सबक पे, हर चीज़ पे चोट करते थे, तभी जुनैद सलीम बना। कोई अड्डा भी नहीं बनया वैसे, मैं कोई गाल डॉक्टर साहब, मुझे एक बात याद आ जाती है, इस शहर में मैंने आज तक जजेस के हवाले से जो मोस्ट ऑनेस्ट जज देखा, तो वो इतना ऑनेस्ट था कि वो ये मुसाफिर वैन होती है, इसमें अदालत जाया करते थे। मैंने बल्कि एक दफ़ा उनकी तस्वीर अपने अखबार के लिए खींचने की कोशिश की, तो उन्होंने मेरे कैमरामैन का कैमरा तोड़ दिया गुस्से में, कि इसमें मैं कौन सा कौम पे एहसान करता हूँ। अच्छा, उनसे मैंने एक दो मेरे दफ्तर तशरीफ़ लाया, तो मैंने उनसे पूछा कि वो अब अल्लाह को प्यारे हो गए, करवट अल्लाह ताला जन्नत नसीब फरमाए, तो मैंने उनसे पूछा कि ये ज़रूरी है कि जो ईमानदारी का रास्ता है, वो जो इस्तकामत का रास्ता, वो सख्तियों से गुजर के जाता है, वो आसानियों से गुजर के नहीं जाता? कहते नहीं, हो ही नहीं सकता। आप इस मुल्क में तब्दीली की बात करें और आराम से आप फूलों की सेज पे बैठ के करें, ये हो ही नहीं सकता। मैंने कहा कि कईयों को तो होता है। कहते कि बताओ किस नबी को मिला ये रास्ता? बिल्कुल सर, बिल्कुल किस पैगंबर को ये रास्ता मिला? उनका ये मौक़िफ़ था कि अगर आपका रास्ता जो है वो सीधा सीधा है, बहुत आसान है, तो समझ लें कि वो रास्ता ठीक ही नहीं है। हजूर वाला, आप सिर्फ इस मुल्क की बात ना करें सर, इस पूरी कायनात की पूरी तारीख देखें। जब किसी ने हक परस्ती की बात की है सर, उन्होंने नंगे पैर छाले पा के नोकीले पत्थरों पे चलना पड़ा जिंदगी भर। ये बस तो फिर बड़ी अच्छी चीज़ है। हजूर वाला, मैं पूरी यकीन से जानता हूँ कि रोज़े हशर जन्नत के दरवाजे पे खातून खड़ी होंगी, आप अपने अमाल की गठरियाँ भी ले जाएंगे ना,
تو انہوں نے دیکھنا نہیں ہے, ان کی نظر کسی اور چیز پہ ہوگی. اور میں نے سوچا ہے, اور ان راتوں میں نے یہ یقین سے سوچا ہے کہ بی بی جدوں تیرا سامنا ہوئے گا نا تو میں تیرا پلہ پھاڑ لینا ہے اور کہنا میں انہاں سزاواں نوں جھیل کے آیا ہاں جہے تیرے امام زادیاں نے, تیرے نبی زادیاں نے جھیلے نے. ہن دے تو اجر, کیونکہ تو تے سخیاں دی ماں ہے, سخیاں دی تھی ہے, تے تیرے کو نہیں ملنا تو پھر کدے کو ملنا. اور سر جی اس یقین کے بغیر اگر آپ مر گئے ہیں تو پھر واقعی مر گئے ہیں. اس یقین کے ساتھ اگر آپ مر گئے ہیں تو سمجھیے آپ جی گئے ہیں. کیا یہاں مجھے لینی ایک چھوٹی سی کمرشل بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ جو آج کل فیملی ولاگنگ ہو رہی ہے, اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ اس کو کیسا سمجھتے ہیں؟ ہمارے بیٹا جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ جن نے جو بیچ کے کمانا ہے وہی بیچے, جنہوں نے گھر والے بیچنے گھر والے بیچے. یہ روایت بیٹا جی دیکھیں بات سنیے, اب یہ ریس اتنی زیادہ ہو گئی ہے, اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ اس میں اب کسی قسم کا کوئی ریگولیشن نہیں رہی. میں ایسے مولویوں کو جانتا ہوں اور آپ بھی جانتے ہیں جنہاں دے ویلاگ تدے لوکی ویندے نے جدوں وہ بیگم صاحبہ دے نال کردے نے, اور جدوں آپ داڑے نال کردے نے ویلاگ تے خدا دی قسم کنے ویوز ہوندے نے 6 گھنٹے 2. ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ آپ میں اتنی خوبیاں ہیں کہ ایک خوبی ایک سے بڑھ کر ہے. ایک خوبی ایسی ہے جس پہ لوگوں کی نظر کم پڑتی ہے, وہ میری بہت فیوریٹ ہے, یعنی کہ آپ ایک بہترین شیف ہیں. بیٹا جی آپ ذرا سوچیں ڈاکٹر صاحب, ذرا سوچیں کہ ایک آرتھوپیڈک سرجن ہے اور وہ بڑے پائے پکار ہے, ہڈی جو ادھر جوڑ رہے ہیں تو ادھر توڑ رہے ہیں. تسی جو مرضی بن جاؤ, جو مرضی کرو, سارے رزق دے تکے نے. تو ایتھے بیٹھی ہیں بیٹا, اے بھی رزق دا تکا ہے, میں ایتھے بیٹھا ہاں, اے بھی رزق دا تکا ہے. البتہ کچھ لوگوں کے ماشاءاللہ لفافے بہت بڑے ہیں, کا شاید نہیں ہے, مگر کہنے کا مقصد یہ ہے ڈاکٹر صاحب 4 مہینے دی قید دا بدلہ میرے میں تو کہنا جیڑا میرے ہاتھ آوے میں چھٹاں کسے نوں نہ. ڈاکٹر صاحب تہاڈے واسطے سب تو پہلا فون میں اپنی جان تے رسک لا کے کیتا سی یار. بالکل میں بھول گیا اور اس نے 18 جگہ تے میرا ذکر کیتا ہے اس گل دا. بالکل سر, بالکل. مگر حضور والا بات یہ ہے کہ آپ نے جو کھانے کی بات کی ہے, اتنی بڑی نعمت ہے کہ سب سے پہلے رازق آپ کو کمانے کی توفیق دے, کمانے کے بعد پکانے کی توفیق دے, اور پکانے کے بعد کھلانے کی توفیق دے. بیٹا درجے ود دے جاندے نے نعمتاں دے, تے جیڑا بندہ کما تیسرا درجہ سن لو بھائی جان, تیسرا درجہ کھانے کا نہیں, کھلانے کا ہے. اور کیا تسی جیڑا نکر چ وڑ کے بھابی دے کھا رہے ہوندے نا وہ دھنیا گوشت, کبھی پوچھ لیا کرو انہوں سانوں. اچھا ویسے ایک کام کر رہے ہیں, ایک دن بھابی دا تے میرا دھنیے گوشت دا مقابلہ رکھ سر جی. گل ہے وے اے لوکی سمجھدے نے کہ شاید انہاں ہی دھنیا گوشت بنانا آندا ہے, ہور کسے نوں نہیں آندا. انہاں نوں کی پتا کہ انہاں وچ کسے کولوں سکھے دھنیا گوشت, خدا دی قسم. بیٹا جی کھانے میں ذائقہ کس چیز سے آتا ہے؟ چند شرائط سے. کون پکا رہا ہے, کس کے لیے پکا رہا ہے, اور کیوں پکا رہا ہے. حضور والا ساری دنیا ایتھے بیٹھی ہے نا, پوچھو انہاں نوں تو ایک گل تے سارے متفق ہوں گے, ہماری امی جو کھانا ہماری امی وہی مسالے کٹ دی سی, صرف اس دے کول ایک خاص مسالہ سی جس کے لذت شناس صرف آپ تھے. وہ مسالہ جو آخر میں موٹی جی چونڈی پھڑ کے ہر ماں پاندی ہے سالن وچ, او دا نام ہے مامتا. سر جی جدوں مامتا دی چونڈی پہ جائے پھر ہر بچہ او دے تے ہک ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ کبھی اس سہاگن کو دیکھا ہے آپ نے جس نے اس خیال سے آج ہانڈی پکانی شروع کی تھی کہ میرا کفیل, میرا مجازی خدا میرے بچیاں دا پیوا جانا ہے, محنت کر کے. ایک منٹ ڈاکٹر صاحب یہ سن لو, یہ سنو جی فرمائیے. یہ جو کھانا پکانا ہے نا, اٹ از این ایکٹ آف لو. حضور والا کدی تسی سوچیا میں وکی تینوں گل دساں, ایک اینو کیسے محبت کرنے والیاں بیبیاں ملیاں نے, میں انہاں واسطے تا حیات اگر دعا کراں. ایک بیبی دا ذکر کرنا چاہنا وا, اوڈے سونے ہاتھ شاید پورے شہر وچ کسے دے نہیں سن, او سچ ایسا چہرہ بھی پورے شہر وچ نہیں سی. او سن بی بی ذل ہما, ملکہ ترنم کی بڑی صاحبزادہ. جنید میں قسم کھانے کے لیے تیار ہوں, جو ان کے ہاں پراٹھا پکتا تھا, ایسا پراٹھا کہ او دے ول چ پتہ نہیں کنا کیوں, مگر ایسے نہیں. پکانے کے بعد ہما جی نے یہ کرنا, گرم گرم پراٹھے نوں اپنے ہاتھاں لے کے انج مسل دینا کہ ورک 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 ہو جانا. ماشاءاللہ جی کیا کہنے,
ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਜਾਨ ਬਚਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨ ਟੁਰੇ ਇੰਜ ਦਾ ਲੰਗਰ। ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਸਮੇਟੀਏ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਪਕਾਇਆ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਜੀ ਮੈਂ ਮੈਸੇਜ ਪੜਿਆ ਹੁਣੇ ਬੇਗਮ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਧਾ ਆਪਾਂ ਹਲੀਮ ਲੈਂਦੇ ਆਣਾ ਆਂਦੇ। ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਹੈ ਨਾ ਅੱਜ ਕੱਲ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ ਮਹਿਫਿਲ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਭਾਵੇਂ ਤੇਰੇ ਸਾਨਵੀ ਕਿਰਦਾਰ ਨੇ, ਮਗਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਡੀਅנס ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ, ਤੂੰ ਤੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਰ ਜੁਨੇਦ ਸਲੀਮ ਆਪ ਨਾ ਸੁਣੇ, ਆਪ ਬੜਾ ਸੀਰੀਅਸ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਕੁੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਸਾਰੀਆਂ थिड़क गई, क्योंकि थिएटर के अंदर जब से बीबी अज़मा बुखारी ने आके डांस को बाइखलाक बना दिया है, तब से सिर्फ एक कोई डांस चल रहा है, वो चल रहा है नसीम विकी दा। एक गल, अच्छा दूजी गल है, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ नसीम विक्की और उस्मा बुखारी रले ने आप। जी गल पता कीजिए, मैं वैसे इस सिलसिले में अज़मा बुखारी के बहुत हक में हूँ सर। औरत की तजलील या सिर्फ औरत को इस तरह का नचवाना गाना, ये किसी अच्छे मुआशरे की चीज़ नहीं है। बिल्कुल। अब सर पता है क्या होता है, अब वहाँ पे हमारे हीरोज इक्वली डांस करते हैं। सही। अब ये सिर्फ औरत की तजलील या कोई ऐसा काम नहीं रह गया। ख़वातीन अब भी डांस करती हैं, मगर एक खास पैराए, एक खास अंदाज में। उसी में करना चाहिए। बहुत ज्यादा वल्गैरिटी भी हो गई थी, मगर बड़ा मिसयूज हो रहा बेचारियां था रह गई हैं, क्योंकि देखो जी गल सुनो, जेड़े स्टेप मेरे दोस्त ने याद कीते ने, इन्हें हिफज कीते ने गाने, समझ आई? लोको वे लोको, इस मुंडे नू रोको। क्या बात। अच्छा डॉक्टर साहब, ये फरमाइएगा कि जब इंसान इस तरह के एक तल्ख तजर्बात से गुजरता है तो उसका लामहला जो नतीजा निकलता है वो ये निकलता है, एक तो ये कि उसको अच्छी बातें भी याद रहती हैं कि मैंने ये करना है, बदलाव आ जाता है, चेंज आ जाती, तो और एक उल्टा भी नतीजा निकलता है, इंसान मुंतकिम मिजाज हो जाता है। कहता है और ऐसी जेल की कहानियां जो हैं, क्रिमिनल्स की कहानियां भी जेल से जुड़ी हुई हैं और बड़े बड़े दरवेशों की कहानियां भी जेल से जुड़ी हुई हैं। बिल्कुल सही फरमाते हैं आप। आपने कोई जेल में कोई नेगेटिव, कोई इंतकाम वाला जज्बा भी लेके बाहर आए हैं? हुजूर वाला, मैं बिल्कुल आपको एक ऐसे बात बाहर, जेल से बाहर आके आपने ऐसे किया हो? मैं कोई नहीं, बिल्कुल ऐसी बात नहीं सर, मैं कोई फरिश्ता नहीं। जब शुरू में मैं ये सोच रहा था कि ये सब कुछ जो मेरे साथ हो रहा है, क्या मैं ये डिजर्व करता हूँ, और मैं ये भी सोचता था कि बाहर निकल के मैं देखना का कि की मैं करना है। हुजूर वाला, इन्हीं ख्यालों के अंदर एक साहब वहाँ पे जेल में आए, दाढ़ी वाले, 5 वक्त की इमामत कराते थे मुझे, वहाँ पे नमाज पढ़ते थे। उनका नाम था मुफ्ती अदनान साहब। न जाने कैसे अल्लाह ताला वसीला बनाता है, मैंने नाम लिया उनको, वो ये प्रोग्राम सुन रहे होंगे, मेरे साथ जेल में थे। कहने लगे कि डॉक्टर साहब अभी कुरान शरीफ पढ़ रहा था तो आपकी तरफ इशारा हुआ है कि ये वजीफ़ा इनको दो। मैं सच्ची बात कह रहा हूँ, वो भी मेरे गवाह हैं। मैंने भी कई बार कुरान पढ़ा, आप सब ने भी पढ़ा होगा। मैं शर्तिया कहता हूँ कि एक आयत है जिसकी तरफ आपका कभी ध्यान ही नहीं गया होगा, और वो 2 दफ़ा तकरार से है। आयत है वल्लाहु अजीज़ुन ज़ुंतकाम, इंतकाम लेने वालों में से सबसे बड़ा और ज़बरदस्त मेरा अल्लाह है। हज़ूर वाला, 2 दफ़ा ये आयत है। मैंने उस दिन से अपना ये वजीफ़ा बना लिया है और अपनी पर्ची और अर्जी उसके सामने रख दी, उसके दरबार में, जो वाकई अजीज़ुन ज़ुंतकाम है। अब मैं डरता हूँ कई दफ़ा कि जेड़े डाडे नू मैं पुकार बैठा हाँ, उन्हां सारियां दा बने दा की जिन्हां ने मेरे ते झूठे मुकदमे बनाए। कदी सोच रहा वा बरीक छाननी वाला कीमा बनना, नहीं, ओदे हाथ चढ़ के सुरमा बनना है जेड़ा दिसना भी नहीं, इंशाअल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, आप मुझे ये बताएं कि आपकी बेगम कहाँ गई है? सर बेगम मेरी तो बेगम नवाजिश की बात कर रही हूँ। अच्छा, बड़ा सुपरहिट प्रोग्राम था, अच्छा, अब वो नजर ही नहीं आती, कहाँ चली गई? बेटा जी बात पता क्या है, जी। अपने अंजाम को वो पहुंच गई। जब वो मैंने प्रोग्राम लिखा था, एंड आई एम स्टिल सो प्राउड ऑफ इट, जो किरदार मैंने कंसीव किया था, वो इस किस्म का किरदार था कि शायद आपकी कोई बहुत ज़्यादा भी तगड़ी किस्म की फीमेल होस्ट उसे नहीं कर सकती थी। मैं आपको छोटी सी मिसाल बताऊं आपको। एक जुमला मुझे ऐसे याद आ गया। एक तो मेरे जुमले थोड़े मुश्किल सन। बेगम साहबा एक प्रोग्राम में कहती हैं, क्या बताऊं, सब लोग औरतों के मसाइल की बात करते हैं, मगर खूबसूरत औरत का मसला कोई नहीं समझता। जिस महफिल में जाती हूँ, जिस पार्टी में जाती हूँ, सारे मर्द ख्वाहिश का इश्तिहार माथे पे लगाए मेरे सामने आ खड़े होते हैं, आंखें नहीं हटाते। और आपको तो पता है मेरी आदत दिल तोड़ने की नहीं, मुंह तोड़ने की। अब मुझे बताइए कि ये जुमला तो बाजी बुशरा को खवाना सी, सही बात है। मेरा जरूर जाना चाहिए।
नाज़रीन, यहाँ मुझे लेनी एक छोटी सी स्पेशल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। सारे मौसम संवारती है चाय, वाह बज़ में यारा निखारती है चाय, क्या बात, हम मेहनत कशों से पूछो तुम, वाह, किस तरह थकावट उतारती है चाय। ओहो, चैनल के खर्चे पे पीती हो चाहे। ਦਿਖਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਸ਼ਲ ਸੇ ਪੁੱਛੋ। हाँ जी, ਜਿਵੇਂ ਆਂਦਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਹਾਣੀ ਕੀਤੀ, ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਬਣਾਇਆ, ਫਰਾਈ ਪੈਨ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸ਼ਜਰ ਤੂੰ ਕੀ ਖਾਣਾ ਹੈ? ਇਹ आमलेट बन गए थे, आगे जुनेद साहब ने दे। शजर के बारे में भी मैं एक बात कहना चाहता हूँ चाय के हवाले से। क्या 6-7 बंदों का खा जाता है ये खाना। अच्छा, इतनी गहराई है तुम्हारे मिसरे में। मैं है कहता ना, हूँ वाह 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 वाह। 6-7 बंदों का खा जाता है खाना। जहाँ पीने जाता है सिर्फ चाय। सर हमारे मेहमान चाय पी चुके हैं, अब हम इनके साथ गपशप का आगाज करते हैं। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं एक शेर अर्ज करना चाहूँगा। जी प्लीज। होते कहीं हो और बताते कहीं हो तुम, हाँ, होते कहीं हो, होते बताते कहीं हो कहीं और बताते कहीं हो कहीं हो तुम, तुम। इस दर्जाए एहतियात से थकते नहीं हो तुम। बहुत अच्छे, lovely। होते कहीं हो और बताते कहीं हो तुम, वाह, इस दर्जाए एहतियात से थकते नहीं हो तुम, जैसा दिखाई देने की करते हो कोशिशें, आहा। मैं खूब जानता हूँ कि ऐसे नहीं हो तुम। ऐसे नहीं। मैं खूब जानता हूँ ऐसे नहीं। बहुत खाना खाएं जो मिल के दोस्त, झूठे मुंह से ही कहो बिल मैं दूंगा, ऐसे नहीं हो तुम। मैं तो कभी खाना खान गया ही। अल्लाह शुक्र है ना दोवां दी भी लड़ाई हुई। जी, तो अब बारी है उस सवाल की जिसका दुरुस्त जवाब देने वाले को मिलेगा क्या एनजी होम्स का गिफ्ट हैम्पर। जी, तो सुहाना का सवाल है अपने मेहमानों से, वो कौन सा मुल्क है जिसके पहले 3 हरूफ काट दिए जाएं तो वो बचता है जो हर इंसान के पास है। बहुत आसान सवाल है जी। जी, इनको माइक दीजिए। मेरी राय में तो तुर्की है। तेरे काफ कट कर दे तो की चाबी। तो चाबी हर एक के पास होती है। नहीं, वो चाबी आपकी देखे। मलकियत वो चीज है जो हर एक के पास होती है, हर एक के पास होती है, दुनिया में हर एक के पास है। वो कौन सा मुल्क है जिसके पहले 3 हरूफ काट दिए जाएं तो वो चीज बचती है जो दुनिया में हर शख्स के पास होती है। जी 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 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। बताएं जी। उस मुल्क का नाम है वियतनाम। वियतनाम। अब वाओ ये ते 3 हरूफ काट दें तो नाम दुनिया में हर बंदे का होता है। वाह, जी जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा शेर ये बेवफा के लिए है। अफसोस के बेवफा को गले से लगा लिया, वाह 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 वाह, अफसोस के बेवफा को गले से लगा लिया, हीरा समझ के कांच का टुकड़ा उठा लिया। वाह वाह, कोशिश तो उसने की थी मेरे कत्ल की बहुत, कोशिश तो उसने की थी मेरे कत्ल की बहुत, मुझको तो मेरी माँ की दुआ ने बचा लिया। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं इलामा इकबाल की नज़म अब्रे को सार सुनाना चाहूंगी थोड़ी। जरूर, इरशाद। कभी सहरा कभी गुलजार है मस्कन मेरा, शहरो वीराना मेरा, बहर मेरा, बन मेरा, किसी वादी में जो मंजूर हो सोना मुझको, सब्जाए को हो है मखमल का बिछोना मुझको, है बुलंदी से फलक बोस नशे मन मेरा, अब्रे को हसार हूँ गुल पाश है दामन मेरा, मुझको कुदरत ने सिखाया है दुरफ़शा होना, ना काए शाहिद रहमत का खुदीक़ा होना, गमज़दाए दिले अफ़सुरदा दहका होना, रोन के बज़्म जवाना ने गुलिस्ता होना, है बुलंदी से फलक बोस नशे मन
میرا ابر کوثر ہوں گل پاش ہے دامن میرا. ویری گڈ جاب. ہمارے ساتھ آج ظہیر عباس موجود ہیں جو اپنی بہت ہی خوبصورت آواز میں ہمیں گانا سنانے والے ہیں. واہ واہ واہ. جی ظہیر عباس. تھینک یو سو مچ. یہ میرا گانا وسیم اقی صاحب کے لیے. ایک ڈوڑا بھی آپ کی نظر ہے. واہ واہ شکریہ. وے تینوں کی پتہ سجان وچھوڑیاں دا ہوتے جو نکھیڑ کے رات لگائی نہیں وے ساتنگ تھی ویں دن اوجھرا تینوں حسنا شکل وکھائی وے بندہ ادھی راتی اٹھیڑ کے ٹر پوندے تے آندی سماج دماغ چکائی نہیں وے کوئی پوچھے تا آنکھ وسیم چھڑی دے بس اجے تک نیندر آئی بس دے دل دی سجن انج تباہی نہ کرے بس دے دل دی سجن انج تباہی نہ کرے ہتھ جڑے دی پیاں بے وفائی نہ کرے بس دے دل دی سجن سب نو چھوڑا ہے چڑیاں میں تینوں دکھ نہ دے تو جدائی دے مینوں مان تروڑی نہ تو جگ ہسائی نہ کرے مان تروڑی نہ تو جگ ہساہی نہ کرے ہتھ جڑے دی پیاں بے وفائی نہ کرے بس دے دل دی سجنے بندے وقت نبھاویں دل تے کئیاں باجو نبھاویں دی کئی گھڑ وانگو کھاویں کیا کہنے رقبے گھا والے تے کدی تینوں یاد آسن سادے وقت وفا تے کدی تینوں یاد آسن سادے وقت وفا والے. بہت اعلیٰ جی. بہت اعلیٰ بہت اعلیٰ. یہ میرا کلام خواجہ غلام فرید صاحب کا آپ کی نظر. ہو دلڑی لٹی تے یار سجن کدی موڑ مہارا تے آ وطن ہو دلڑی لٹی تے یار تیری روہی دے کڈھ لے بیریاں وے میں تیریاں گلاں معاف کرے ہویاں میریاں کچھ تیریاں کچھ میریاں دلڑی لوٹی ناظرین یہ تھا آج کا دیس بک. اور چلتے چلتے آج کی چھوٹی سی بات یہ کہ ہمیشہ گفتگو میں برابری اور مساوات کا یہ اصول یاد رکھیں کہ جب بیوی بولے تو شوہر سنیں اور جب شوہر سنیں تو بیوی بول لیں. ناظرین خوش رہیں خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ حافظ.